تو آج جو حوالہ ہے میرے من میں حجی کی کتاب میں سے ہے، جن کے پاس بائبل مقدس سے نکالیے گا، اس کا پہلا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 7ویں۔ لکھا ہے، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ اپنی روش پر کیا کرو؟ غور کرو، پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو۔ کیا کرو؟ کہاں سے لا کر؟ پہاڑوں سے لکڑی لا کر۔ اور میں اسی سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ پرانے عہد ناموں میں خیمہ اور ہیکل خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا نے بنی اسرائیل کو کہا کہ میرے لیے ہیکل تیار کی جائے۔ خدا اپنے گھر کو ویلیو دیتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے گھر کو ویلیو دیتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ میرا گھر خوبصورت ہو۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر میں بہت سے چرچز میں جاتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چرچز میں جالے لگے ہوئے ہیں، چرچز میں ڈولگی پھٹی ہوئی ہے اور وہ نیچے رکھی ہوئی ہے، اور زبور پھٹے ہوئے ہیں، اور پنکھے جلے ہوئے ہیں، اور کلیم پھٹا ہوا ہے، اور بڑی دفعہ سیلنگ کے بلب خراب ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، کچھ بھی سب، اور لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے گھر پر کوئی دھیان نہیں دے رہے۔ ایک پاسٹر تھا، اس نے مجھے کہا کہ پادری صاحب ہمارے چرچ کا برتھ ڈے ہے، تو آپ آئے میرے چرچ میں، ہم 25 سال ہو گئے ہیں ہمارے چرچ کو۔ میں نے کہا یار خود ہی کر لا، کوئی گل نہیں، میں بیزی۔ اس نے کہا نہیں، ہم ڈیٹ بدل دیں گے، آپ ضرور آئیں۔ میں نے کہا یار آپ پہ کلام سنا لا، کوئی گل نہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ آئیں۔ جب میں وہاں پر پہنچا، 25واں سالگرہ تھا ان کا۔ آپ یقین جانے چرچ میں جالے لگے ہوئے ہیں، چرچ کے اندر برا حال ہے، اور چرچ کی جو ساری خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے، سب کوئی۔ میں نے کہا یار یہ کون سا سالگرہ تم کر رہے ہو؟ یہ کون سا سالگرہ ہے؟ تو خدا اپنے گھر کو ویلیو دیتا ہے۔ آمین۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ خدا چاہتا ہے میرا گھر خوبصورت ہو، میرا گھر پرفیکٹ ہو۔ خدا نے بنی اسرائیل سے سوال کیا، کیا کیا؟ اس نے کہا تم اچھے مکانوں میں خود رہتے ہو۔ اسی کتاب کی 4 آیت میں وہ خدا سوال کرتا ہے کہ تم اچھے مکانوں میں خود رہتے ہو، تم نے اپنے لیے بہترین مکان بنائے ہوئے ہیں، لیکن میرا گھر اجڑا ہوا ہے، میرا گھر ویران ہے، میرا گھر کے اندر کوئی بھی تمہارا خیال نہیں ہے۔ میں آپ کو خدا اپنے گھر کو ویلیو دیتا ہے۔ میں نے کیا بولا؟ خدا اپنے گھر کو کیا کرتا ہے؟ ویلیو دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے اسرائیل کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ اس وقت اپنے گھروں کو بنانے میں مصروف تھے، اور خدا کا گھر ویران پڑا ہوا تھا، لیکن خدا نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے اپنا گھر تو سیلنگ والا بنا لیا ہے، میرے گھر کے اندر جالے لگے ہوئے، اجڑا ہوا ہے۔ تو کئی دفعہ لوگ خدا کے گھر کو ویلیو نہیں دیتے۔ میرے عزیزوں غور سے سنیے، خدا کے کام کو خدا چاہتا ہے کہ لوگ
کیا کریں؟ اپنے مکان سے بھی زیادہ میرے گھر کو ویلیو دیں. اور اس کی مثال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرا دل پادری صاحب کے ساتھ کیوں کھڑا ہوا؟ پادری صاحب کو کال آئی، اور وہ کال کون سی تھی کہ آپ کی زمین کے پیسے آپ کو مل رہے ہیں، اس کے بچے بھی جوان ہیں، یہ اپنا گھر گروی بھی لے سکتا تھا. اور اس نے کیا کیا کہ پادری صاحب میں پہلے خدا کا گھر بناؤں گا، پہلے میں بیج باؤں گا، پہلے میں اس سے سٹارٹ کروں گا خدا کا کام، پہلے میں خدا کی بادشاہی کے لیے کروں گا، پہلے میں وہ کروں گا جو خدا کہتا ہے. اور خدا مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا گھر بناؤں گا. میں آپ کو بتاؤں، ان آنکھوں سے اگر میں دیکھوں، حالاتوں کو میں اگر دیکھوں ان آنکھوں سے، تو مجھے یہی محسوس ہوگا کہ خدا کا گھر نہیں بن سکتا. مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ہیں. پترس بھی اسی بات پر کنفیوز تھا، اور وہ کہتا کہ خدا، ہم نے تو ساری رات محنت کر لی ہے، ہم نے تو محنت کر لی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اور وہ صبح کا وقت تھا جب یسوع مسیح ان کے پاس آئے. رات کو مچھیرے مچھلیاں پکڑتے تھے، رات کو مچھلیوں کو جال بھی نظر نہیں آتا تھا. رات کے وقت مچھلیاں، غور سے سنیے گا، رات کے وقت مچھیرے مچھلیاں پکڑتے تھے، کیونکہ رات کے وقت پانی بھی کیا ہوتا تھا؟ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اور صبح کے وقت جو مچھلیاں تھی وہ نیچے رہتی تھی، اور مچھلیوں کو جال بھی نظر آتا تھا. پترس کہہ رہا ہے، میرے تجربے کے مطابق ہم تو رات کو مچھلیاں پکڑتے ہیں، لیکن اب استاد ممکن نہیں ہے کہ یہ ہم مچھلیاں پکڑ سکے. اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جال پھر سے بھر جائے. ہم ساری رات محنت کر کر کے تھک چکے ہیں. اب ہمارے پاس، ہمارے اندر کوئی طاقت یا میرے اندر کوئی زور بھی نہیں رہ گیا. آج رات میں آپ کو بتانے آیا ہوں، خدا اپنا کام آپ کی طاقت پر نہیں کرتا، خدا اپنا کام اپنے زور پر کرتا ہے. آپ کو صرف حاضر ہونا ہے، کام کرنا خدا کا کام ہے. اس نے کہا، لارڈ we struggle lot. It is impossible now. اور یسوع صبح کے وقت آیا. ساری رات مچھیرے مچھلیاں پکڑتے تھے. میں کہتا ہوں، رات کو کیوں پکڑتے تھے؟ جال نظر نہیں آتا تھا مچھلی کو، پانی ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اب صبح کا وقت ہے، اور یہ مچھیروں کے لیے مشکل کام ہے صبح نکلنا. خداوند نے کہا، اب جال ڈالو. اور کیا ہوا سنیے، لکھا ہے وہ جال بھرا ہی نہیں، وہ جال بھرا ہی نہیں، وہ جال پھٹنا شروع ہو گیا. جب خدا آپ کو برکت دیتا ہے، چیزیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ان آنکھوں سے مشکل نظر آ رہا تھا کہ خدا کا گھر ہو. شاید بڑے بزرگ خادم یہاں پر ہوں جن کو خدا نے انہوں نے خدمت کی ہے، لیکن انہیں موقع نہیں ملا جگہ لینے کا، خریدنے کا. بڑے لوگ ہیں، شاید ان آنکھوں سے جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کے ساتھ چلنے کے لیے عقل کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. عقل سے چیزیں مینج ہوتی ہیں، ایمان سے چیزیں بنتی ہیں نہیں. آمین. تو خدا اپنے گھر کو پیورٹی دے رہا ہے. پادری صاحب نے بھی خدا کے گھر کو پیورٹی دی. پہلے خدا کا گھر ہونا چاہیے، پھر دوسرا کام ہونا چاہیے. بڑی دفعہ لوگ اپنے گھروں کا خیال کرتے ہیں، خدا کے گھر کا خیال نہیں کرتے. خداوند یوں فرماتا ہے، میرا گھر اجڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا، میں خدا کا گھر بناؤں گا، اور میں اس کے لیے کیا کروں گا کہ میں پہلا سٹیپ لوں گا. میں آپ کو بتاؤں، غور سے سنیے، آپ زندگی میں بڑی دفعہ لوگ کہتے ہیں میرے لیے کوئی کام کرے. آپ کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا. پہلے آپ نے اپنے لیے پہلا کام خود کرنا ہے. پہلی اینٹ آپ نے کیا کرنی ہے؟
खुद उठानी है। आप कहेंगे ना मेरे लिए पहली ईंट कोई उठाए, कोई नहीं उठाएगा। आपने पहली ईंट क्या करनी है अपने लिए? पादी साहब ने पहली ईंट खुद उठाई है। इसके पास मौका था कि ये इस बात को देखकर, पैसों को देखकर कहता नहीं पहले मैं ये करूंगा अपने लिए। इसके पास मौका था। जैसे खुदा अपने घर को वैल्यू देता है, गौर से सुनिए, इसी तरह इन्होंने भी वैल्यू दी। और मैं आपको बताऊं, खुदा चाहता है कि तमीर के हिस्से में हर बंदा कुछ ना कुछ करे। हवाला पढ़ना चाहते हैं? निकालिए खरूज की किताब, मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, निकालिए जल्दी से। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है निकालिएगा। कौन सी मैंने किताब बोली? खरूज की किताब। निकाल लिया है तो बोलिए आमीन। पादी साहब बैठ जाए। खरूज की किताब उसका 35वां बाब है और उसकी 29वीं आयत। कौन सी? 35वां बाब 29वीं आयत। मैं चाहता हूं कि किसी को ना यहां कोई बंदा बैठ जाए, उसको एक मैं थोड़े से हवाले भी पढ़ाऊंगा, आप बैठ जाएं, आप पढ़ते जाएं, हवाले में बोलता जाऊंगा, आपने पढ़ते जाना है। खरूज 35वां बाब और उसकी 29वीं आयत। यूं बनी इसराइल अपनी ही खुशी से खुदावंद के लिए हदिये लाए, यानी जिस जिस मर्द या औरत का जी चाहा कि इन कामों के लिए जिनके बनने का हुक्म खुदावंद ने मूसा की मार्फत दिया था कुछ दे, वो उन्होंने दिया। उन्होंने क्या किया? सब ने दिया। हर मर्द हर औरत ने, सब ने दिया। क्या? इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। वो खुदा जो मिस्र में बनी इसराइल को सोना दे सकता है, जब वो मिस्र से निकले थे उनको खुदा ने सोना, क्या वो खुदा आसमान से सोना नहीं फेंक दे सकता दोबारा? खुदा वही चीजें जो उसने दी है उन्हीं से कह रहा वापस लाओ मेरे लिए। सब मर्द सब औरतें खुशी के साथ, यूं बनी इसराइल अपनी खुशी से खुदावंद के लिए हदिये लाए। कैसे? 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 मुझे बोलिए कैसे? ऊंची बोलिए कैसे? ऊंची बोले कैसे? किस तरह? खुशी के साथ। हदिया कैसे लाए? हाँ, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो जरा। खुशी के साथ। खुशी कैसे होती है? खुशी के साथ। कोरिया में कहते हैं 2 दफा शैतान चर्च में आता है। कोरिया में लोग कहते हैं, एक दफा शैतान उस वक्त आता है जब कलाम शुरू होता है, कलाम चुराने लेने आता है। और कलाम की भी आयत है कि इब्लीस आता और कलाम चुरा कर, बोलिए ना जरा शाबाश, क्या करता है? और वो कहते, कोरिया में कहते, दूसरी दफा शैतान कब आता है? जब हदिया डाला जाता है, फिर वो दिलों को पकड़ने आता है। लेकिन सुनिए, कोरियन लोगों ने यह सीख लिया कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। हदिया कैसे देना है? ना लाचारी के साथ, ना कैसे? कैसे? खुशी के साथ। हदिया, आपकी जेब किधर है? दिल के पास। पैसा देना का दिल का मामला है। बनी इसराइल ने खुशी के साथ, और हर एक ने
खुशी के साथ खुदा को दिया। और याद रखिए, गौर से सुनिए, जब बनी इस्राएल ने खुदा को दिया, खुदा ने उनको बरकत दी। हर आदमी और हर औरत कुछ ना कुछ दे सकता है। पता आपको, एक दफा का जिक्र है कि एक पादरी ने ऐलान किया कि हम बिल्डिंग बनाएंगे। वहां पर एक औरत थी, वो बेवा थी, और बेवा होने के बावजूद उसने पादरी साहब की बात सुनी, और जब सुनी तो अपने घर में गई। उसके दुपट्टे में कुछ सिक्के लिपटे हुए थे, उसने लपेटे हुए थे। उसने घर में गई, उसने कहा कि यही मेरे पास है, यही लेके मैं पास्टर साहब के पास जाऊंगी। वो सोच रही थी ये तो बिल्कुल थोड़ा है, काम बहुत बड़ा है, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा है, इन सिक्कों से कैसे चर्च बनेगा। लेकिन याद रखिए, गौर से सुनिएगा, उसका ईमान भी बड़ा था कि खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उस औरत ने क्या किया, पादरी साहब के पास आई और कहती, पास्टर साहब ये सिक्के हैं इस चर्च के लिए। उसने दुआ की। जब दुआ की, इधर देखिए, उसने कहा, बहन तू सिक्के नहीं दे रही, पता तू क्या दे रही है? तू अगली नस्ल के लिए कुछ दे रही है। क्या कर रही है तू? अगली कुछ। क्या हुआ कि बहुत कुछ सालों के बाद वो चर्च तमीर हो गया। वो बुढ़िया मर गई। जब वो बुढ़िया मर गई, वो पादरी साहब खड़ा हुआ और पादरी साहब ने कहा, इस चर्च की पहली ईंट रखने वाली कौन सी औरत है? उन्होंने कहा, किसी ने कहा मैंने 2 लाख दिया, किसी ने कहा मैंने 5, लेकिन उसने कहा आप में से यहां पर कोई भी नहीं है। यहां पर एक औरत हुआ करती थी, बेवा थी, पहला काम उसने किया, और आज आपके बच्चे संडे स्कूल इस चर्च में कर रहे हैं। ये किसी ने बीज बोया है। याद रखिए, जब हम देते हैं, हम ईंटों के लिए खाली नहीं देते, हम नस्लों को बचाने के लिए बीज बोते हैं। कई दफा लोग समझते हैं कि हदिया सिर्फ पास्टर को दिया जाता है, खत्म हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, पास्टर उस काम के जरिया से खुदा के काम को जिंदा रखता है। आपकी नस्लें बाबरकत होती हैं। आप हदिया नस्लों को बचाने के लिए दे रहे हैं। आप जो कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी काम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे अब्बू को किसी ने हदिया दिया और उस वजह से उसने अंजील सुनाई, और अंजील सुनाने की वजह से मैं उस हदिये के पैसे से खाता रहा, और मैं आज आपको मुनादी कर रहा हूं, और आपकी नस्लों को मैं मुनादी कर रहा हूं। आपकी नस्लें भी हदिया के जरिए से, आने वाली नस्लें हदिया के जरिए से चलेंगी। हदिया 1 जनरेशन के लिए नहीं है। उसने कहा किसी ने बीज बोया था यहां पर। कितने लोग हैं जो समझते हैं आपके पैसे से सिर्फ ईंटें नहीं लगती, आपके पैसे से नस्लें बचती हैं। और खुदा नस्ल दर नस्ल खुदा है। हम यही सोचते हैं ना, झूठ नहीं बोलना। मैं आपको बताऊं, मैं भी शायद यही सोचता होता, लेकिन खुदा ने मुझे सिखाया नहीं, देने से आगे वाली नस्लें तैयार होती हैं। खुदा का घर क्या रहता है? खिदमत कायम रहती है। और खुदा के घर के देने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। निकालिए एक हवाला, 2 शमूएल निकालिए। 2 शमूएल 24 बाब की 24 है। दाऊद क्या कहता है, देखिए जरा, सुने। अब दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, वो चीजें मैं नहीं दूंगा खुदा के काम के लिए जिनकी मैं कीमत नहीं अदा करूंगा। सुने जरा सारे खादम जिन्होंने बीज बोया है, बीज बोने वाले हैं, बीज बोना चाहते हैं, सुने क्या कहता है, सुने जरा।
दूसरा सैमुएल 24वां बाब और उसकी 24वीं आयत। तब बादशाह ने अरनोआ से कहा, नहीं बल्कि मैं ज़रूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना जिन पर मेरा, और कई मुफ्त दे मेला खुदा जी वेखी जाते हैं। दोबारा पढ़िए, शाबाश, ये सुने, जरा गौर से सुने। बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको नहीं, वहां से शुरू करें, पहले से। तब बादशाह ने अरुणा से कहा, नहीं बल्कि मैं, सुने जरा गौर से सुने, जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। पर मेरा फ्री वाला बंदा नहीं। कई कहते हदिया भी ना देना पवे, इश्तिहार ते तस्वीर भी वड्डी होवे। कुछ कहते कुछ भी ना करना पवे ते जिहड़ी स्लेट लगे उहदे ते वड्डा नाम मेरा होवे। नहीं, कीमत अदा करनी पड़ती है। कई कहते मेरी आवाज इतनी सरीली होवे ते प्रैक्टिस नहीं करनी। मेरी खिदमत बड़ी बाबरकत हो, दुआ नहीं करनी। मेरे घर में पैसा बड़ा हो, हदिया नहीं देना। हदिये के बगैर, कीमत अदा करने के बगैर आपकी कुर्बानी नहीं चढ़ेगी। शाबाश, दोबारा पढ़े, सुने जरा गौर से, सब गौर से सुने। बादशाह ने क्या कहा है? तब बादशाह ने अरुणा से कहा, नहीं बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। जिन पर मेरा, असी पता की कहने, सब कुछ बन जाए, मैनू ना कुछ खर्च करना पवे। मैनू कोई चर्च बना दे, है मैनू कोई कार लैके दे दे, मैनू कोई मोटरसाइकिल लैके दे दे, मेरे वास्ते कोई कर दे, मैनू कख भी ना करना पवे। दाऊद कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुर्बानी खुदा के जोर मैं नहीं चढ़ाऊंगा, मैं कीमत अदा करूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं खाली फ्री खाते कुर्बानियां नहीं चढ़ानी। तो खुदा को देने के लिए क्या करना पड़ती है? कुर्बानी है कि नहीं बीच में मुलवस है? तो कुर्बानी, हर कुर्बानी नहीं लोग देना चाहते, झूठ नहीं मैं बोलता। रात को कोई कुर्बानी देगा अपनी नींद की, फिर अनॉइंटिंग आएगी। मसा कब आता है? जब रात को कोई कुर्बानी चढ़ाता है। नाल दा बंदा सारी रात दुआ करता, उन्हें शफाइया इबादत रखी है, मैं भी शफाइया ले, मेरी दुआ एक घंटे दी नहीं, उथे बीमार ठीक होंदे, इधर लड़ाइयां होंदियां हारां तो। इथों गीतां तो लड़ाइयां, ओ बंदा कुर्बानी दे के आया, उथे बीमार ठीक होंदे, उधर गीटियां गायब होंदियां, उधर पत्थरियां, इधर की होएगा? मैं ओनू वेख के रखा, मैं कीमत नहीं अदा की। याद रखिए, कीमत अदा करने के बगैर आप फलदार नहीं हो सकते। ना खिदमत में हम अक्सर लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, पास्टर सेमिनार होते, लोग कहते तेल मिलेगा कि नहीं, ले तो जे तेल ही तेरी बरकत उसने छीन ली, तेल के पैसे देकर तुझे, उसने रोटी भी खिला दी तुझे पैसे भी दे दिए, तुझे कलाम भी सुना दिया, तूने क्या किया उसके लिए? दोबारा पढ़िए हवाला, मैं क्या करूंगा? मैं ऐसी कुर्बानियां नहीं चढ़ाऊंगा। शाबाश, सुने जरा, सुने,
शाबाश। बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा। मैं जरूर कीमत देकर। हमारे यहां क्या ट्रेंड हुआ है? यही हुआ है, तेल मिल जाएगा, खाना मिलेगा, किहो जा खाना होएगा, फिर चल आ जाएंगे, लव गिफ्ट मिलेगा, फिर ऐसी आ जाएंगे। मैंने अपनी निजात के ऊपर क्या खर्च किया? हाँ बोलिए ना, क्या खर्च किया? हाँ बोलिए ना, बोलो कुछ नहीं होता। क्या किया? कुछ भी ना। तो मैं साड़ किदे को रहा जिदे को वड्डी गड्डी है। हाँ यार ये देखो किवें आ गई, ये भी तो पादरी है ना भाई। नहीं, उसने कहीं ना कहीं को कीमत अदा की है, कहीं ना कहीं उसने कुछ ऐसा किया है जो तूने इन आंखों से नहीं देखा। असी पता की करने मुफ्त दे विच ही ना, पार्क च चल जाओ, पैसे ना पाए हो तो बिरयानी खा, जिन्होंने पतीला बनाया ज्यादा उन्होंने तो असी खा जाएंगे। हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी हर बंदे को। पादी साहब ने कीमत अदा की है, इसके साथ खुदा ने हम सबको खड़ा कर दिया है, इसने कीमत अदा की है। इसके पास पैसे आए, पैसा लालच पैदा करता है, यकीन जाने। पैसा अंधा कर देता है, पैसा डायरेक्शन को छीन लेता है, पैसा ज़हन को क्या कर देता है? बोलिए भी। पैसा हर बंदा नहीं संभाल सकता, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत है। पैसा गुलाम बना लेता है, पैसे में बहुत ताकत है। पैसा ख्वाब दिखा देता है, पैसा जिंदगी भी खराब कर देता है। पैसा हर बंदा मैनेज नहीं कर। जब पैसा आता है आंखें बदल जाती हैं, लेकिन जब ईमान आता है पैसे का कंट्रोल नीचे आ जाता है। जब खुदा के लोगों के पास तो सुनिए, ऐसी बरकत कभी भी ना जिसमें पैसा, जिसपे मेहनत नहीं की। कई बंदे होंगे चर्च जी उन्हें 1 रुपया नहीं लाया होंदा ते हक सब तो ज्यादा कहते मैनू अगे बिठाया करो, हाँ यार हार मैनू पाया करो। नहीं, कीमत जिन्होंने अदा की है उनका हक है। सुक्की इज्जत ना लवो, बल्कि गिल्ली करके कुर्बानी चढ़ा के लवो। सुक्कियां इज्जत ना लवो। आए एक हवाला पढ़ते हैं, ज़बूर की किताब निकालिए, ज़बूर 78 निकालिए, उसकी 4 आयत। ज़बूर 78 उसकी 4 आयत। और जिनको हम उनकी औलाद से पोशीदा नहीं रखेंगे, बल्कि आइंदा पुरुष को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत और अजायब और उसने किए बताएंगे। क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जो खुदा ने क्या किए हैं, अजीब काम क्या किए हैं हमारे लिए, हम क्या करेंगे? अगली किनको बताएंगे हम? कैसे? हम आइंदा अगली पुश्त को बताएंगे। हमारा जो सबसे बड़ा, हम आजी हैं, खुदा का काम अब्दी है। हम चंद सालों के लिए हैं, खुदा की बादशाही हजारों सालों के लिए है। हमें ऐसा करना है कि आने वाली नस्लें उसको याद रखें। और मैं आपको बताना चाहता हूं आप सबको कि कुर्बानी देना सीखें। इससे पहले कि आप इब्राहिम बने, आपको कुर्बानी बेटे की चढ़ानी पड़ेगी। आप ईमानदार बने, इससे पहले आपको अपनी नस्ल, अपने पैसे की, अपने वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो खुदा के काम के लिए कुर्बानी
देना पसंद करते हैं। मैं ऐसी औरतों को जानता हूं जिन्होंने अपना सोना बेचकर खुदा के घर के लिए दे दिया। मैं ऐसे बंदों को जानता हूं जिन्होंने अपना गाड़ियां बेचकर खुदा के काम के लिए दे दी। मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूं जिसके पास कोई पैसे नहीं थे, उसने क्या किया, मजदूरी करके सारा पैसा खुदा के काम के लिए दे दिया और खुदा ने उसको बरकत दी और ब्लेस किया। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको कुर्बानी चढ़ानी पड़ेगी। कितने लोग हैं जो कुर्बानी के बगैर ऊपर जाना चाहते हैं? पहले कुर्बानी है, फिर आसानी है। पहले क्या है, फिर आसानी पहले नहीं आएगी। पहले क्या होगी, फिर क्या होगी? हम क्या चाहते हैं? पहले फिर ऐसी कहने पहले बर्रा मुहैया कर, फिर पुत्र लेके जावांगा। उसने कहा जिससे तू प्यार करता है वो लेके आ। आज रात मैं आपको बताऊं, जिस पैसे से आप प्यार करते हैं वो पैसा खुदा की बादशाही के लिए दें। खुदा